Hello guys, welcome to my channel. My name is Mohammad Fahim Hussain and today we are going to learn about tense. So tense, many people they ignore tense when they listen that tense there is nothing to learn about tense. No, but we should not ignore it because tense is the root of English. Whatever the sentence which we frame, whatever the sentence we speak, whatever we speak in English, with the help of tense we make. Just like an example, I am walking, I am speaking, I am teaching, I taught you in the class, I have been living there, I went to Patna. Whatever the sentence which I have spoken, yet that with the help of tense I have spoken. Okay, so that's what we are going to learn. It is really important to learn if you want to speak English. First of all, you have to study tense because that is the basic part, that is the root. Okay, so tense, we know that three types of tense are there. Okay, present, past and future. Present, what is present? Just right now. Right now, that is present. It means that right now I am making video, right now I am teaching you, that is present. Past means that whatever the work which I did in past, that is called past. मतलब जो भी काम हमने past में किया था वो past कहलाया, जो बीत गया. Future, like whatever we are planning for our future, just to build our career, just to earn money, just to settle our life, that is called future. जो future के लिए plan कर रहे हैं, जो future में हम करेंगे, that is future. So today video we will learn about present continuous tense. The first tense, which is present continuous tense. In present tense, four tenses are there. Four part in present tense. There are four types of present tense. The first one is we are going to learn present continuous tense. Continuous. When we listen to it, then it seems like that continuity is there. Something is continuous. Something is going on in continuous process. That is the explanation. Now we will come to the explanation whatever I have written for you. Present continuous means that it means that the work is still going on in continuous process or the work is incomplete. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है. जस्ट लाइक आई एम वॉकिंग, अगर मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग. अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, व्हाट इट इज कंटिन्यूस में हो रहा है, मतलब काम अभी जो हो रहा है वो खत्म नहीं हुआ, इनकम्प्लीट नहीं हुआ, मतलब जो काम अभी जारी है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन इन कंटिन्यूस प्रोसेस और द वर्क इज इनकम्प्लीट, जो अभी आधा अधूरा है, चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. व्हाट इज एग्जांपल? अब एग्जांपल देखते हैं. दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल. वे बास्केटबॉल खेल रहे हैं. अभी वो खेलने का काम क्या है? जारी है, वो खेलने का काम वो हो रहा है. सी इज वेटिंग फॉर मी. वो मेरे लिए इंतजार कर रही है, अभी इंतजार वो कर रही है. वी आर वॉचिंग अ मूवी. हम लोग कोई भी मूवी है जो देख रहे हैं, हम लोग मूवी देख रहे हैं. मूवी मतलब कि हम लोग फुल फिनिश नहीं किए, जो देखने का काम है वो अभी चल रहा है. सो इट शोज द कंटिन्यूटी. ओके, लाइक वी नो दैट. सर अब बोलेंगे सर ये सब तो हम लोग जानते हैं, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, सारे लोग जानते हैं कंटिन्यूटी होता है. प्रेजेंट कंटिन्यू, आई एम वॉचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम लाइक ईटिंग, आई एम प्लेइंग, ये सब तो जानते हैं सर. बट लेट मी टेल यू द कुछ हट कर मैं बताता हूँ स्पेशल चीज़ अबाउट फ्यूचर, ये सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में. लाइक वी नो दैट आई एम गोइंग, ये सब तो बोलते हैं, बट फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इट शोज फ्यूचर ऑल्सो. इट शोज फ्यूचर ऑल्सो, फ्यूचर कन्फर्मेशन. लाइक फ्यूचर में तो हम लोग नहीं जानते, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, वी डोंट नो. But whatever the thing which we know that is confirmed in future, we will use present continuous tense. Yes, if a work is like confirmed that it will happen, that it is there, that is the sure, there it is sure that it will happen. Like just like it shows future confirmation, मतलब कि वो होके रहेगा, वो टलेगा नहीं. जस्ट लाइक मेरे को बोलना है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मतलब कि यहाँ मैंने आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मैंने यूज़ किया. इसका मतलब है क्या? कि मैं दिल्ली जाऊँगा ही जाऊँगा, कंफर्मेशन है. लाइक एग्जाम्पल, सपोज आई हैव बुक्ड माई टिकट, आई हैव पैक्ड माई बैग. इट मीन्स दैट वॉट? कंफर्मेशन जाने ही जाना. टिकट मैंने बुक कर दिया है, बैग मैंने पैक कर दिया है, तो मतलब कि मैं कल जाऊंगा ही जाऊंगा. सो ये क्या बताता है? इट शोज फ्यूचर कन्फर्मेशन. फ्यूचर में जो काम है वो कंफर्म होने वाली है
वही वो बताता है। सो आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, मतलब कि फ्यूचर में जो जाने की बात है वो कंफर्म है। सो आप एक बार इसको एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दो और नाम होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि वो काम कंटिन्यूटी में है, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि वो काम कंटिन्यूटी में है, अभी वो काम खत्म नहीं हुआ। तो ये उसका दो नाम और है, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। सो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया गाइस, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वी कॉल इट एज present indefinite also, like as you can look here, okay। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों एक ही होता है। अब समझते हैं कि सर सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। जस्ट लाइक वॉट एवर द वर्क वी डू एज अ डेली रूटीन, डेली रूटीन क्या होता है, जो काम हम हमेशा करते हैं, डेली करते हैं। जस्ट लाइक डेली रूटीन, सूरज का डेली रूटीन क्या है, डेली पूरब से उगना, डेली पूरब से उगना। जस्ट लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। सन के साथ हमने राइजेस लगाया क्योंकि सन एक है, हमने क्या लिखा पढ़ा है, किसी सिंगुलर के साथ V5 लगाते, तो सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका मतलब है सूरज का काम है जो हमेशा का है पूरब से उगने का, पहले भी पूरब से उगता था, अब भी उग रहा है और फ्यूचर में भी पूरब में उगेगा। दैट्स वाई वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सन राइजेस इन द ईस्ट। एग्जाम्पल से समझ लिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन, ओके। इट शोज डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्शन। ये क्या शो करता है, डेली रूटीन और हैबिचुअल, मतलब जो हमारा आदत है, जो डेली काम हम करते हैं। जस्ट लाइक आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक बाथ, then I take my breakfast, I go for my college, I go for my school, or I go for my office. After that I take my lunch, after that I take snacks, after that I take dinner, and that I go for my sleep on my bed. So what it means that we do it on daily basis, we do it daily, that's it called as a daily routine. So that's we use simple present tense structure. Now we will see the example. I offer namaz sorry guys, आई ऑफर नमाज, इट मीन्स दैट मैं नमाज अदा करता हूँ। अगर हिंदी से मैं आपको बताऊँ तो हिंदी से पकड़ने की ये भी है कि जिसके लास्ट में ता है, ती है और ते है लगा रहे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ता है, ती है और ते है लगा रहे, तो हम सिंपल प्रेजेंट उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आई ऑफर नमाज, मैं नमाज अदा करता हूँ, नमाज मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, ही गोज टू मॉस्क, इट इज नॉट मॉस्क्यू, इट इज मॉस्क, द प्रोनाउंसिएशन इज मॉस्क। इसका मतलब मस्जिद, टेम्पल मतलब मंदिर, और चर्च मीन्स गिरजाघर, वो सब जान रहे हैं हम। सो इट इज मॉस्क नॉट मॉस्क्यू। ही गोज टू मॉस्क, वह मस्जिद जाता है। दे गो टू मार्केट, द थर्ड एग्जाम्पल इज दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। ते आया ना हिंदी से, सो दैट्स वी विल आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द हिंदी। सो दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, एग्जांपल है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इज, एम, आर, भी, विल, शैल, हैज, हैव, कोई नहीं। ये सिंपल प्रेजेंट है, जो काम डेली होता है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहता है। अब आते हैं कि V1 किसके साथ लगाएं, V5 किसके साथ लगाएं। सो V5 हम लगाते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जो एक है, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे लगाया ही, एक की बात करिए, वाह मतलब कि एक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ES लगाया, V5 लगाया। आई, वी, यू, दे और प्लूरल, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ V1 लगाएंगे। जस्ट लाइक देखिए, प्लूरल है ना, दे मतलब कि दो, एक से ज्यादा, तो दे गो टू, इसलिए हम V1 लगाया, ठीक है ना। और आई के साथ भी V1 लगेगा, तो हम आप इसको देख सकते हो अच्छे से। यस गाइस, सो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट, परफेक्शन। जस्ट लाइक आमिर खान को हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट है, जितना बोलना रहता है वो उतना ही बोलते हैं। दैट्स वाई वी कॉल हिम एज अ मिस्टर परफेक्शनिस्ट। सो परफेक्ट मतलब है कि जो काम
इनकम्प्लीट ना हो, कंप्लीट है, उसमें कोई कमियां ना हो, उसको बोलते हैं हम परफेक्ट। और प्रेजेंट लगा है मतलब कि हम अभी की बात कर रहे हैं। इसका हिंदी से अगर हम पकड़ेंगे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, हिंदी से अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें। तो अब चलिए हम देखते हैं उसके स्ट्रक्चर पे और उसके एक्सप्लेनेशन पे कि वो क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। इट शोज दैट द वर्क हैज जस्ट फिनिश्ड बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट। इसका मतलब ये शो करता है कि जो काम है अभी खत्म हुआ है और उसका जो असर है अभी भी बाकी है। जो काम अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट में खत्म हुआ है, पास्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो काम प्रेजेंट में खत्म हुआ है और उसका असर है जो अभी भी बाकी है। देखिए क्या है, बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट, उसका असर जो अभी बाकी है। चलिए उसके बाद हम थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर कुछ। तो गाइज ये जो एग्जाम्पल है वो हम उसको बाद में देखेंगे। कुछ रीजन है, मैं इसको इस पे कुछ आपको बताना है तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, ठीक है। दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, वे अपना काम खत्म कर चुके हैं, वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। सी हैज रिटन अ लेटर, वह खत लिख चुकी है, चुका है, चुकी है आ रहा है ना, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस एक लड़की थी जिसको एक खत लिखना था, उसने पूरा काम खत्म लिख कर, उसने अपना एक खत जो है उसने लिख लिया, इसलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल रहे हैं। मतलब उसका काम जो उसने खत्म कर दिया तो वो परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई सी हैज रिटन अ लेटर, तो वो खत लिख चुकी है। अब आते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे, आई हैव टेकन ब्रंच। अब ब्रंच क्या होता है? लाइक ब्रेकफास्ट हमने सुना है, लंच सुना है, ब्रंच क्या होता है? ब्रंच मतलब होता है कि जब हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, नाश्ता नहीं किया और एक बार हमने लंच कर रहे हैं, जस्ट लाइक एक एट 1 o'clock, एट 12 o'clock वी आर जस्ट eating food, that is called as brunch, that is not called as lunch. Okay, तो जब हम नाश्ता नहीं किए, एक बार खाना खा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो आई हैव टेकन ब्रंच, मैं अपना ब्रंच ले चुका हूँ, मैं अपना ब्रंच ले चुका हूँ। प्रेजेंट की बात करते हैं। तो ब्रंच मतलब समझ में आ गया क्या होता है? ब्रेकफास्ट प्लस लंच। अब थोड़ा ब्रेकफास्ट से आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका होता है ब्रेक फर्स्ट। ये मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, प्रोनाउंसिएशन ये होता है ब्रेक फर्स्ट, ब्रेक फर्स्ट, ठीक है ना। अब कुछ चीज मैं बताता हूँ ब्रेकफास्ट। लाइक पहले ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट नहीं बोला जाता था। लाइक इफ आई टॉक अबाउट बिफोर 15th century, the people they used to not say breakfast, they used to say morgen meat, they used to say morgen meat. Okay, morgen meat is it is a German word. Morgen meat, it is a German word. Morgen means morning, सुबह, और मीट मतलब मील, खाना और फूड। तो ये मॉर्गन मीट पहले बोला जाता था सुबह का खाना को। सो ब्रेक फर्स्ट। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ब्रेकफास्ट हम क्यों बोलते हैं, लाइक व्हाट इज द रीजन, ब्रेकफास्ट नाम कैसे पड़ा? तो लाइक आपको मैं बताता हूँ ब्रेकफास्ट नाम कैसे पड़ा। जस्ट लाइक व्हेन वी टेक डिनर, आफ्टर दैट वी गो टू स्लीप, सो वी टेक स्लीप फॉर how many hours? We take sleep for 7 hours, 8 hours or 6 hours. It means that for that duration, for that 6 to 7 hours, it means that we are not taking any food, we are not eating any something, we are not eating something. So what it means? It means that we are on fast, we are on fast। हम लोग कुछ नहीं खा रहे, तो 7 से 8 घंटे के दौरान वो जो रहता है वो हम भूखे रहते हैं, तो क्या कहलाया? एक तरह का फास्ट कहलाया। सो इन द मॉर्निंग व्हाट वी डू, वी eat something. So what we are doing, we are breaking our fast, so that's why we call it as breakfast, ठीक है। तो हमने जो अपने फास्ट को हमने तोड़ा सुबह में खाकर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें लगा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए तो हमने पढ़ा था जैसे कि आई एम वॉचिंग, आई एम रीडिंग बुक। बट ऐसा भी सेंटेंस आता है ना, जैसे लाइक वो 2 घंटा से पढ़ रहा है, वो 3 घंटा से सो रही है,
इंडिया 1947 से आज़ाद हो रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे बोलेंगे इंडिया इज डेवलपिंग सिंस 1947, सी इज स्लीपिंग फॉर 3 hours, ही इज रीडिंग बुक फॉर 2 hours? इज इट right? No, it is totally wrong. That's why grammarian has made this tense, this structure, just to use in that type of sentence. Okay, so what we will learn, so that's we are going to learn, क्या सीखेंगे क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसका प्लस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम, ये क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या होता है ये। इट मीन्स दैट द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। इसका मतलब होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ, मानकर चलिए कल शुरू हुआ और वो कल खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक चल रहा है। जस्ट लाइक मान के चलिए कल मैं 2 घंटे पहले पढ़ाई कर रहा था, तो वो क्या मैं ख़त्म कर दिया, अगर मान के चलिए तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। बट मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, 2 घंटा पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया और वो काम अभी तक जारी है। तो क्या हम उसी को ये इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आई हैव बीन स्टडिंग और आई हैव बीन लर्निंग फॉर 2 hours और 3 hours. So that's what we will use here. वो ही यूज हम इसे यहाँ करेंगे, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। सो स्ट्रक्चर हमारा एग्जांपल क्या है, जस्ट लाइक आई हैव बीन टीचिंग इन ऑक्सब्रिज फॉर 7 months. आई हैव बीन टीचिंग इन ऑक्सब्रिज फॉर 7 months. उसका मतलब कि मैंने ऑक्सब्रिज में पढ़ाना 7 महीने पहले स्टार्ट किया और अब तक क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने अब तक पढ़ाना छोड़ा नहीं हूँ। अगर मेरे से किसी से पूछेगा कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स you have been teaching in Oxbridge, so what will I say? I will say that I have been teaching in Oxbridge for 7 months. मतलब कि मैंने पास्ट में शुरू किया और अब तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इंडिया हैज बीन डेवलपिंग सिंस 1947 सॉरी गाइस, इंडिया है जो 1947 से आज़ाद, मतलब कि आज़ादी के बाद से अभी तक जो डेवलप होते आ रहा है, तो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को लिखेंगे। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वो जो इंग्लिश है वो सीख रहे हैं सुबह से, तो ये वो इंग्लिश सुबह से सीख रहे हैं। अब आता है कि सिंस और फोर कब लगाए हम। Many students they have confusion between since and for, where we will use since and where we will use for. So that's I will tell you. Since का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, since का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे लाइक एग्जाम्पल देखिए, मंडे 2 बजे 2 AM 2 PM 1991 को ईयर का नाम है, 4 बजे का मतलब कि प्रॉपर टाइम यहाँ पर पता है हमारे पास, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। जैसे लाइक देखिए यहाँ क्या, सिंस मॉर्निंग मतलब कि सुबह से था, इसलिए हम सिंस लगाए। 1947 से मतलब कि आज़ादी से था, इसलिए हमने सिंस लगाया। अब फोर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट लाइक 3 दिन से, 3 साल से, 4 घंटे से, 5 दिन से, वैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोर को यूज करते हैं, जो कि उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। जो एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अब तक चल रहा है, अब तक वो काम खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यूटी है पास्ट से और अब तक, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्या होता है।